Hello class 8 students, welcome back to the Smart Learning channel. So today we are going to start a new chapter, that is chapter number 5, coal and petroleum. I hope that what do you mean by coal and what do you mean by petroleum? I think some knowledge you are having that what is coal and what is petroleum. ठीक. सो पेट्रोलियम दैट मीन्स आपने सुना होगा पेट्रोल के बारे में, है ना. सो पेट्रोल इज एक्चुअली ओरिजिनेटेड मीन्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेट्रोलियम. सो हाउ इट इज वी विल बी seeing this question and we will be getting this question answer in this chapter. Clear? So and how this coal and petroleum is formed, कैसे कोल इस अर्थ में आया, कैसे ये पेट्रोल नाम का चीज़ हम लोग को पता चला, वो सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो बिफोर दैट लेट अस सी व्हाट इज देयर. We use various materials for our basic needs. Obviously, some of them are found in nature and some have been made by human efforts. Simply यहाँ पर ये लिखा गया है कि जो जो हम लोग का बेसिक नीड्स है, जो कि हम लोग को चाहिए जीने के लिए, वो कुछ हम लोग को नेचर से मिलता है और कुछ हम लोग को मैन मेड से मिलता है. फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, मिनरल्स, सॉइल एंड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब कौन आपको देता है? द नेचर प्रोवाइड्स यू. यस, क्या फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को मैन ने बनाया है? क्या दैट इज मेड बाय ह्यूमन बींग्स? नो. सो सम ऑफ देम यू गेट फ्रॉम नेचर and some you get from human efforts. For example, TV, fan and your shirts, etc, etc. So your basic needs are something that is some of the things that are found in nature and some of the things that are found in human efforts, that means man made. Clear? So in activity 5.1 there is nothing to understand, only you have to make a list of various materials you use in daily life and classify them as natural and man made. कौन कौन सा natural, कौन कौन सा man made है, आपको classify करना है. ठीक है. नाउ does this list include air, water, soil and minerals? All these are obtained from nature, so they are called natural resources. अब सबको पता है natural resources क्या होता है. वो resource जो कि हम लोग को nature से मिलता है, that resource, those things are known as natural resources. For example, air, water, soil, minerals, fruits, vegetables, ये सब क्या हमने बनाया है? No. So those we get from the nature. That is why they are named as natural resources. Clear? Or man-made resources, so you all know that is made by human beings. Clear? Now, can air, water and soil be exhausted by human activities? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि क्या एयर, वाटर और सॉइल एग्जॉस्ट, दैट मीन्स खत्म होना, टू गेट फिनिश्ड. एग्जॉस्ट मतलब टू गेट फिनिश्ड. ठीक है. मीन्स क्या एयर, वाटर, सॉइल वो कभी ख़त्म हो सकता है? क्या वाटर एक लिमिटलेस रिसोर्स है? तो इसका आंसर जो है ये नो आएगा. यस आएगा, बिकॉज एयर, वाटर एंड सॉइल अगर आप इसको अनलिमिटेड वे में और अगर आप इसको वाइजली यूज़ नहीं करोगे तो ऑब्वियसली एक ऐसा दिन आएगा जब आपके पास पानी नहीं होगा पीने के लिए, सॉइल नहीं होगा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करने के लिए और एयर नहीं होगा सांस लेने के लिए. सो यू हैव टू यूज़ दीज नेचुरल थिंग्स, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो द अदर नेचुरल थिंग्स वाइजली. क्लियर? एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू टेल यू दैट वाटर जो है वो लिमिटलेस रिसोर्स है, बट जो हम लोग का पीने का पानी जो कि मीन्स जो कि हम लोग के पीने का लायक है जो पानी, दैट कैन बी एग्जॉस्टेड, बट जो सॉल्टी वाटर होता है वो कभी एग्जॉस्ट नहीं होगा. सो वाटर इज द लिमिटलेस रिसोर्स, बट द वाटर विच वी ड्रिंक, द वाटर विच वी आर एबल टू ड्रिंक, that can be exhausted by human activities. This paragraph is clear to you, because this paragraph you have to understand in a very wise manner कि अगर आप air, water, soil और भी जितने natural things है अगर आप उसको wisely use नहीं करोगे, so एक ना एक दिन ऐसा आएगा जब आपको वो सब मिलेगा नहीं, and you will be facing a lot of problems. Okay? In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. natural resources को हम लोग two kinds में divide किए हैं. first is inexhaustible and second is exhaustible. exhaustible का मतलब अभी हम आपको समझाए to get finished, है ना. inexhaustible मतलब जो finish नहीं होगा, exhaustible मतलब जो finish हो जाएगा. clear? तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बाय इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. वो रिसोर्स जो कि इस नेचर में
अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और जो ख़त्म नहीं होगा ह्यूमन एक्टिविटी, अगर ह्यूमन इंटरफेयर करता है तो भी वो ख़त्म नहीं होगा, दैट रिसोर्सेज आर नोन एज इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। येस, यू कैन पल्यूट, और आपको ब्रीथ करने के लिए वो एयर नहीं मिल सकता, बट एयर तो हमेशा ही रहेगा, सनलाइट तो हमेशा ही रहेगा। सो दिस सनलाइट, एयर, दीज ऑल आर इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि इस नेचर में अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है। कहीं ना कहीं दिन ये फिर से रिन्यूड होता जाएगा एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, और इसको ह्यूमन एक्टिविटीज चाहे तो कुछ नहीं कर सकते। सनलाइट एंड एयर इज इनएग्जॉस्टिबल, ये अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, एंड दीज आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड, और दीज आर नॉट लाइकली टू बी फिनिश्ड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्लियर? इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स क्लियर है। नाउ कमिंग टू एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज ये पूरा ऑपोजिट है एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल का। सो एग्जॉस्टिबल रिसोर्स ये एकदम इनएग्जॉस्टिबल का ऑपोजिट है। कैसे है? द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। एग्जाम्पल्स आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। सी, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो उसका जो क्वांटिटी होता है ना नेचर में, वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब उसका कोई फिक्स क्वांटिटी होता है, और अगर आप वो फिक्स क्वांटिटी को ख़त्म ही कर दे रहे हो तो वो और नहीं मिलेगा आपको, उसके लिए बहुत साल वेट करना होगा और मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स वेट करना होगा, और कोई तो इतना दिन तक रहता नहीं है। सो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज में वो रिसोर्स आते हैं जिसका कि लिमिटेड क्वांटिटी होता है, और अगर आप उसको, और ये क्या होता है, ये ख़त्म हो सकता है बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर आप उसको अनवाइजली अगर आप उसको यूज़ कर रहे हो, सो दे कैन बी एग्जॉस्टेड, दे कैन बी फिनिश्ड। क्लियर? एग्जाम्पल बहुत ही अच्छा से एग्जाम्पल दिया है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट को अगर आप कट करते जाओगे तो फॉरेस्ट और आएगा ही नहीं, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट कट करके आप बिल्डिंग्स बना ले रहे हो तो फॉरेस्ट आएगा नहीं, कहाँ पर उसको लैंड मिलेगा जो फॉरेस्ट वो ग्रो करेगा, है ना। वाइल्ड लाइफ, अगर आप वाइल्ड लाइफ को मीन्स मारते जा रहे हो, आप उसको किल कर रहे हो लगातार कोई पर्टिकुलर एनिमल को, तो हो सकता है वो एक्सटिंक्ट कर जाए, एंडेंजर्ड हो जाए। अभी बहुत से एनिमल्स एंडेंजर्ड भी है और कुछ तो एक्सटिंक्ट भी कर गए, है ना। और मिनरल्स को अगर आप मीन्स लिमिटलेस रिसोर्स में से अगर आप उसको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, अनवाइजली यूज़ नहीं कर रहे हो, सो दे कैन ऑल्सो बी एग्जॉस्टेड। कोल और पेट्रोलियम जो कि हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि यू हैव टू यूज़ दिस रिसोर्सेज वाइजली, बिकॉज ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब को बनने के लिए सालों साल लग जाते हैं, मीन्स मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं ये सब बनने के लिए, ठीक है। सो यू हैव टू यूज़ दिस रिसोर्सेज इन अ वाइज मैनर, ठीक है। तो हम लोग जो यहाँ पर इनएग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल पढ़े, यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं ये सब हम लोग को नेचर से ही मिलता है, बट किसी का क्वांटिटी अनलिमिटेड है तो किसी का क्वांटिटी लिमिटेड है। दिस मच इज क्लियर टू यू। यहाँ तक अगर आपको कहीं पर डाउट है देन प्लीज मैसेज इन द कमेंट सेक्शन, ओके। नाउ कमिंग टू एक्टिविटी 5.2. So in activity 5, what you have to do, it is a group activity. You have to take some containers, fill them with popcorn, peanuts, roasted grams, toffees, whatever you want, fill that. Okay, now divide students into groups of 7. That means जितने भी students हैं उनको 7 ग्रुप्स में आप डिवाइड कर लो, मीन्स एक ग्रुप में 7 स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इंटू 3 सब ग्रुप्स कंटेनिंग 1, 2 and 4. Label them as first, second and third generation respectively. That means 1 belongs to first generation, 2 belongs to second generation, and 4 belongs to third generation, ठीक है। Now what you have to do, these subgroups represent the consumers. तो हम लोग जो किए हैं 1, 2 and 4, so 1, 2 and 4 ये फर्स्ट जनरेशन है, ये सेकेंड जनरेशन है और ये थर्ड जनरेशन है, क्लियर। तो दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर, दैट मीन्स फर्स्ट जनरेशन में जो एक जन है ना वो कंज्यूमर, दैट मीन्स वो कुछ लेगा, है ना। एंड सेकेंड जनरेशन में जो 2 जन है वो भी अपना कुछ लेगा, एंड देन थर्ड जनरेशन में 4 स्टूडेंट्स है
है ना. So as population is growing, second and third generation have become larger number of consumers. See, first generation में बस एक ही दो स्टूडेंट था, फिर सेकेंड जनरेशन में पॉपुलेशन ग्रो किया तो टू स्टूडेंट्स हो गए, और थर्ड जनरेशन में भी पॉपुलेशन ग्रो किया तो थर्ड जनरेशन में 4 स्टूडेंट्स हो गए. ठीक है ना. पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल. मीन्स इसको एक कंटेनर देना है, इसको एक कंटेनर देना और इसको एक कंटेनर देना है. इसमें मान लो पीनट्स है, इसमें मान लो टॉफीज है, एंड इसमें मान लो पॉपकॉर्न्स है. ठीक है. Put 1 full container for each group on a table. Ask consumers of the first generation from each group to consume eatables from the container of their group. मीन्स उनको थोड़ा थोड़ा सा खाने के लिए बोले, फिर सेकेंड जनरेशन को बोलिए खाने के लिए, एंड अगर सेकेंड जनरेशन खाने के बाद कुछ बचा है तब आप बोलिए थर्ड जनरेशन को खाने के लिए. ठीक है. इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द कंटेनर, आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट. थर्ड जनरेशन को बोलिए खाने के लिए. नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट. फिर आपको देखना है कि थर्ड जनरेशन में जितने भी स्टूडेंट्स थे, क्या वो सब ने क्या ये जितना बचा था उसको सब खा पाए, या कोई कोई बचे जो जिसको कि खाने ही नहीं मिला. ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन द कंटेनर. और आपको ये भी देखना है कि कुछ बचा है या सब कुछ खत्म हो गया, सब खा लिए स्टूडेंट्स ने या कुछ बचा भी है. ये एक्टिविटी क्यों आपको करने दिया गया है, इसके पीछे एक रीजन है. लेट्स सी व्हाट इज देयर. Assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum, natural gas. तो ये जो कंटेनर्स में जो खाने थे ना, ईटेबल्स थे ना, पॉपकॉर्न्स, पीनट्स, टॉफीज़ वगैरह, ये सब थे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. कोई कोल है तो कोई पेट्रोलियम है, कोई नेचुरल गैस है, दैट मीन्स जो कि ख़त्म हो सकता है. ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न. आर द अर्लियर जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी? It may be that the earlier generation in some groups were concerned about the coming generation and left something for them. See, जो फर्स्ट जनरेशन ने खाना खाया तो वो सब नहीं खाए, वो चिंता की अगर हम लोग सब खा लेंगे तो सेकेंड जनरेशन क्या खाएगा, तो वो उनके लिए कुछ बचा के रखे. सेम वे हम लोग को भी सारे जितने भी एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सबको हम लोग को पूरी तरह ख़त्म नहीं करना है. वी हैव टू थिंक अबाउट द अपकमिंग जनरेशन. यस, कि अगर हम लोग सभी रिसोर्सेज को अभी ख़त्म कर ले तो व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन. मीन्स हम लोग के बाद वाला जनरेशन का क्या होगा हाल, कि अगर हम लोग सारे रिसोर्सेज को ख़त्म कर ले, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस सबको ख़त्म कर ले, वाटर को ख़त्म कर ले, तो सेकेंड जनरेशन या जो आपका अपकमिंग जनरेशन है तो उसका क्या होगा. फॉर दिस ओनली दिस एक्टिविटी इज़ गिवन इन दिस बुक. Okay, in this chapter we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas. सबके बारे में तो हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग किसके ऊपर फोकस देंगे, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के ऊपर. और ये सब जो है ना, ये कैसे बने हैं, these were formed from the dead remains of living organisms. So these are known as fossil fuels. So what do you mean by fossil fuels? वो मीन्स ये जो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है ना, ये सब ऐसे के ऐसे नहीं बन गए. वो जो डेड ऑर्गेनिजम्स है ना, जो कि मर गए हैं, वो क्या कर रहे हैं, उन्हीं के जो बचे हुए जो रिमेन्स है ना, उसी से बनते हैं ये सारे कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. और इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है फॉसिल फ्यूल. फॉसिल फ्यूल मतलब जो फ्यूल डेड ऑर्गेनिज्म से बने होते हैं, वो फ्यूल्स को हम लोग बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स. तो ये कैसे बने हैं, वी विल बी लुकिंग दैट स्टोरी ऑफ कोल, स्टोरी ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है, कि कैसे ये कोल आया डेड, ये मीन्स जो डेड ऑर्गेनिज्म है उसमें कैसे कोल कन्वर्ट हो गया. सो दैट ऑल वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ अबाउट, पहले हम लोग कोल के बारे में पढ़ेंगे कि कोल क्या होता है, एंड देन स्टोरी ऑफ कोल, कि कोल कैसे बना है ना, कोल कैसे आया इस अर्थ पे, एंड देन इसका यूजेस पढ़ेंगे कि कोल से क्या क्या चीज़ें हम लोग को मिलता है और इसका यूजेस क्या है. दैट ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी, एंड आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू पेट्रोलियम एंड देन नेचुरल गैस, एंड द चैप्टर विल बी finished. Clear? So I hope that this much is clear to you, that what is exhaustible resources and what is inexhaustible resources. If you have any doubt, any query, then mention it in the comment section. Okay, so this is all for today. Thank you so much, students.